Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing class 7th Maths, chapter number 2, fractionals, decimal and rational numbers. So in that already we have come across with the theory part related to what is fraction, how many types of fractions with us, as well as we have done 3 exercises, exercise number 1, exercise number 2 and exercise number 3. Now the time to learn about the exercise number 4. Hope you are practicing well. All the students, make sure this is in max. You need to practice more than one time. And if you want to learn max, and if you want to thorough in max, expert in max, you have to work with your pen and paper. By just reading or by visualization, it might not be completely expertization, so you have to work with the help of pen and paper. So our exercise number 4, question number 1 is nothing but find the reciprocals of each of the following fraction. So this is our question number 1. In question number 1 we have few bits with us, like first question it is asking us like 5 by 8. So what we have to do, we have to just reciprocal these. Second question we have with us like 8 by 7, okay. Third question we have with us like 13 by 7, and fourth question we have with us like 3 by 4. So in this just we have to reciprocal the following fraction. जैसा कि ऑल द स्टूडेंट और व्यूवर्स आप मेरे को जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ, ठीक है। आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और हमने फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। बहुत सारा हमने ऑलरेडी फ्रैक्शन को लेके पढ़ लिया है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है। तो आज हम डायरेक्टली फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 4 करने जाएंगे, जिसको आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 4 आपको स्मॉल स्मॉल बीट्स दिए हुए, इसको कंप्लीट करना है। तो हमने सॉल्व लिखा है। फर्स्ट सॉल्व लिखने के बाद गिवन, जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा रहता है 5 by 8। हियर सॉल्व लिखे हैं हमने, गिवन लिखा है, क्या दिया हुआ है वहाँ को 8 by 7। वेराज हियर सॉल्व लिखे हमने, गिवन दिया हुआ है, व्हाट इज इट इज गिवन लाइक 13 by 7, okay. So just we have to reciprocal is what is meant by reciprocal. We have to just change the numerator into denominator and denominator into numerator. I will going to write like here with red pen or red marker reciprocal. So reciprocal means changing changing numerator into denominator. So just we have to change numerator into denominator. That's only I am going to do. Here 5 by 8 nothing, reciprocal of 5 by 8 is 8 by 5. Here reciprocal of 8 by 7 is 7 by 8. Reciprocal of like 13 by 7 is 7 by 13. This sum you have to do by your own. So hope you understood. Hope so. You have to just write this as well as this red marker thing. Reciprocal means changing numerator into denominator, and same case you have to write one more statement like changing numerator into denominator or denominator into numerator. Same, denominator into numerator. Just I am writing simple d and n, need not to confuse. Here d for denominator and for numerator. Now the time to copy down the thing which is written on board. Hope you have copied. Now the time to solve question number 2, okay. Question number 2 we have like find. What is find? First it is given like 18 divided by 4 by 3. So 4 by 3 I will write like this, okay. We can write 4 by 3 like this also, but some student might confuse. हम 4 by 3 को ऐसा भी लिखते हैं, बाद स्टूडेंट उसको उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आपको टाइपिंग में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा मैथ्स का, कभी ऐसा लिखने के बजाय ऐसा भी आ सकता हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए सॉल्व करेंगे ब्लू मार्कर से। सॉल्व गिवन, गिवन क्या है हमारा 18 divided by 4 by 3. If I want to divide this, I have 2 methods with me. First I need to divide this and this, after that this and this. So for that I will use one small method. Just I am converting this division into multiplication. It's become like 18 into 3 by 4. So here we have to convert this divide with multiplication by reciprocal of the
टर्म विच इज गिवन विद दिस 18. सो 18 इंटू 3/5. सो 18 3 क्या होता जी, ऑल द स्टूडेंट बोलिए. 18 2 36, वेरस 18 3 आई थिंक 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3, 54 हो रहा. इज इंट इट. तो 18 3 हमारे पास 54 है. ये कुछ भी नहीं है नीचे, तो क्या रहता बोला था जी मैं, 1 रहता बोला था, याद है. तो 1 4 क्या होता, 4 होता. ख़त्म. आप चाहे तो इसको और सिंपल टर्म में कर सकते, और सिंपल टर्म में मैं खुद करके बता देता हूँ आपको. 4 को हम डिवाइड कर लेंगे 54 से. 4 1 4 हो गया, ठीक है. 5 में से 4 निकाले तो 1 बचा. 14 हम नीचे की तरफ ला लिए, 4 नीचे की तरफ ला लिए तो 14 हो गया. 4 2 हमारे पास 12 हो गया. अगेन 2 बचा हमारे. तो क्योंकि 2 4 से वो नहीं है, छोटा है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. 20 0. तो आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, या फिर इसको लाइक फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको, चलिए ये आंसर तो ये हो गया. उसका और एक तरीका है. ये फ्रैक्शन को मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं एक खुद आपको रेड मार्कर से लिख के बताता हूँ. तो मैं क्या लिखना है, 4 तो नीचे रहेगा. 12 के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या था जी, 2 था. तो मैं क्या बोला था, रिमाइंडर को कभी भी ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है. तो यस, वी हैव रिमाइंडर 2 ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 12 यहाँ पे रहता हमारे पास. तो ऐसा भी हो सकता है नहीं, यानी 12 4 48. सो जस्ट अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखिए ये आपका 12 नहीं हैगा, 1 3 या 4 3 12 होता हमारे पास, तो 2 बचता. तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्रैक्शन में, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 तो आपको डिनोमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज. रिमाइंडर 2 न्यूमरेटर में जाएगा. वेरस हमारे पास कितने थे, 13. तो ये क्या हो जाता है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाह रहे हैं तो 13 इंटू 2/4 होगा, या फिर नहीं तो इसका फाइनल आंसर आप 13.5 भी लिख सकते. ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से लिखना पसंद करते हैं. ये 13 इंटू 2/3 भी हो सकता है, या 13.5 भी आपको आंसर हो सकता है. ये 3 आंसर्स में से आपको सेलेक्ट करना है. तो फर्स्ट वाला होप यू अंडरस्टूड. सिंपल है. इसको हम किस तरीके से करें, 18 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर दिए 3/4 हो गया. नाउ सेकेंड वाला हम करेंगे. लुक एट द बोर्ड. सो सेकेंड वन वी हैव विथ अस लाइक 8 divided by 7/3. So we have to solve. I am just coming this side, so it is very easy to visualize to you. So given what it is given, like 8 divided by 7/3. So it's become 8 into 3/7. 8 3s are, what is 8 3s are? 24/7. So if we want to keep this as like mixed fraction, 7 3s are 21, remainder like 3. So we have to keep 3 here, remainder in numerator. And what we have remain with us, yeah, we have to just put the 7 here only, and here 3, here also 3. 7 3 are 21, 21 plus 3 24. So that's all. Now I am going to give you 2 questions as your workout problem. Workout problem के हिसाब से करना है आपको. चलिए 2 प्रॉब्लम्स ये थोड़ा रेड मार्कर से लिखा दूँ. तो वर्कआउट के हिसाब से आपको 2 आपको ऑन से करना है, ठीक है. एक है आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3. फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू आवर इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन, वॉट एवर इट मे बी. देन यू हैव टू सॉल्व एज पर दिस प्रोसीजर. नेक्स्ट वी हैव विथ अस लाइक 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/7. This sum I will going to do here itself. So look at the board carefully. I am just making one different margin with me. So here I am just keeping this, like what we have done, 7 24, 7 3s are 21, we got 3. So I am keeping this. So इधर देखिए, अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ. सॉल्व. सो ये गिवन हम लिख लिए, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाई 4/7. नाउ अब इसको हम क्या करेंगे, 5 इंटू 7, ओके नॉट 4/7, 3 इंटू 4/7. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाई. सो मिक्स फ्रैक्शन को कैसा कन्वर्ट करना जी, नॉर्मल फ्रैक्शन में. 7 3s are 7 इंटू 3 प्लस 4/7. ये ऑलरेडी मैं आपको करा दिया हूँ इन आवर प्रीवियस सेशंस. प्रीवियस सेशन में हमने कर लिया है, डोंट कंफ्यूज. 7 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 अपनी प्लेस पे रहेगा. तो 5 डिवाइडेड बाई 7 3s are 21, 21 प्लस
4 कितना होगा हमारे पास 25, तो ये 25/7 रहेगा। तो अब ये 5 डिवाइडेड बाई, इधर इक्वल टू लिख लीजिए आप लोग, नॉट डिवाइडेड बाई, नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 5 जा हो जाता, तो आपको जो फाइनल आंसर बचेगा 7/5। 7/5 क्यों बचेगा, यहाँ पे 1 7 जा 7 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 5 जा 5, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अभी क्या करना है आपको, सिर्फ वर्कआउट प्रॉब्लम आपके पास क्या रह गया, सिर्फ ये प्रॉब्लम आपको वर्कआउट के लिए रह गया। तो ये भी मैं सॉल्व करा दिया, सिंपल है, ठीक है। So for first, actually in reader it is given like just now I saw in reader it is given like first question 18 divided by 3/4, but I have taken the question like 18 divided by 4/3. So here I have done with 18 divided by 4/3, this answer is correct, but in reader it is given like 18 divided by 3/4. So this question also you need to do by your own, ये भी आपको अपने own से ही करना है। फिर बोलेंगे सर गलत करा दिए, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग, बट थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ गया तो आंसर तो सेम यही रहेगा। ये आप ऑन से करिए, क्या आंसर आता है चेक करिए। नाउ अब हम आगे के प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। ओके, यस, इन एक्सरसाइज नंबर 4 वी हैव लाइक प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, द क्वेश्चन इज सॉल्व। ओके, सॉल्व कर लेंगे हम। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमको अपनाना है, बट What the thing we have with us, अगर आप चाहे तो इसको रेसिप्रोकल करिए। दो केसेस हैं यहाँ पे, आप 5/2 × 3 कर सकते हो, पहला केस, या फिर नहीं, अगर 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या रहता बोला था हमें, 1 रहता, याद है ना। तो पहले गिवन ले लेंगे 2/5 डिवाइडेड बाई 3/1। हमारा तरीका ये है कि हमेशा राइट साइड वाले को ही रेसिप्रोकल किया जाता इस टाइप के सम्स में, तो मैं उसी तरीके से मैं आपको बताना पसंद करूंगा। तो ये 2/5 × 1/3 हो जाएगा। तो फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। तो हमारे पास जो आंसर मेन आ गया है वो क्या आ गया, 5/2/15 आ गया। तो अभी आप समझ गए 2/5 डिवाइडेड बाई 3/1, तो इसको हमने रेसिप्रोकल करते ही मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया। तो 2 1 जा 2 हो गया, 5 3 जा 15, दैट्स ऑल। इतना ही सिंपल है। अगर आप इसको ऐसा करना चाह रहे हैं तो 5/, ये भी करा देता हूँ मैं आपको, 2 × 3 हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या आ रहा आंसर, लाइक इसमें आंसर थोड़ा केस अलग आ जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं मैं 5/2 × 3 लिया तो ये 15/2 आ जाएगा हमारे। कौन सा आंसर हम करेक्ट मानेंगे, विच आंसर वी विल गोइंग टू कंसिडर लाइक करेक्ट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगरचे कि मैं इसको अगर रेसिप्रोकल करके 5/2 करा × 3 करा तो मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है कंसीडर करूँगा, 5 3 जा 15/2 हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे गिवन 2/5 डिवाइडेड बाई 3/1 दिया, तो 2/5 × राइट साइड वाले को रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो मेरे को आंसर आ रहा 2/15। तो कौन सा मैं सही कंसीडर करूँगा, जैसा मैं अभी आपको बोला था मेरे वर्ड्स कि ये वाला हम सही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमेशा हम राइट साइड वाले को ही रेसिप्रोकल की करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे और एक आंसर सेकंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास सेकंड वाला, 7/8 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 7/8 डिवाइडेड बाई 5/1। कुछ भी नहीं है तो हम क्या सपोज करते हैं, 5/1। तो अब देखिए 7/8 अपनी प्लेस पे है, इक्वल्स टू इंटू 1/5 हो जाएगा। ये 7 1 जा 7 हो गया, 8 × 5 कितने हो गए, 40। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। वी हैव वन मोर सम विद अस, ओके। और एक सम हमारे पास दिया हुआ है थर्ड वाला, क्या है वो भी देख लीजिए आप। 4/9 डिवाइडेड बाई लाइक 4/5। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जैसा मैं बोला था आपको, सॉल्व लिख लिया आपने, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है आपको, 4/9 डिवाइडेड बाई 5/4 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, 4/9 × 4/5 हो जाता। क्यों हो जाता ये 4/5, सेम राइट साइड वाले को ही मैं रेसिप्रोकल करके इसको साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहा हूँ, जैसा हर केस में मैंने किया था। तो अब ये क्या हो गया, 4 4 जा 16, 9 5 जा 45। तो हमारे पास ये आंसर हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में एरर आ रहा था, तो ये 4/5 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 अगर ये हो जाएगा तो हमारे पास ये होता है लाइक 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5/9 मेन आंसर रहता है हमारा।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, अगर हम यानी स्टेप्स में अगर कुछ मिसिंग कर रहे हैं तो पूरा सम रॉन्ग हो सकता, तो ये इस तरीके से रहेगा जैसा मैं आपको बोला। अभी आप ये कॉपी कर लीजिए, तो ये सम हम करेंगे। लुक एट द बोर्ड, दीपक कैन पेंट 2x5 ऑफ हाउस इन 1 डे, यानी एक दिन में उन्होंने 2x5 हाउस पेंट कर सकते। इफ़ ही कंटिन्यू, अगर उन्होंने कंटिन्यू किया वर्किंग एट दिस रेट, इस रेट से, हाउ मेनी डेज विल ही टेक, उनको कितने दिन लगेंगे टू पेंट द होल हाउस। तो सॉल्व देखेंगे अपन। सो दीपक कैन पेंट 2x5 ऑफ a house in 1 day. So he required 1/2/5 days to complete the paint, isn't it, to whole house. So 1/2/5 means it is nothing but 5/2. So 5/2 days, or else you can convert this 5/2 into mixed fraction. 2 2s are 4, we remains like 1. It become like 2 is in denominator, whereas remainder in numerator, 2 is in the integral part. So he needs like 2 into 1/2 days. That means totally he needs 2.5 days to complete the house of his होल पेंट। तो ये समझ गए अपना। घर कितने हैं, एक घर है, दीपक पेंट कर रहे हैं 2x5 हाउस 1 डे में, यानी एक दिन में कर रहे हैं। तो घर कितना रहता, होल बोल तो 1 लेंगे हम, कौन सी भी चीज़ को फ्रैक्शन में 1 लिया जाता। तो ही रिक्वायर्ड 1/2/5 डेज टू कंप्लीट द पेंट टू होल हाउस। तो ये हमारा आंसर आया। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेस। ये आप कॉपी कर लीजिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप चाहे तो थोड़ा सा पॉज करके ये पूरा इधर का पार्ट कॉपी कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेस सेशन एंड टुडेस क्लास। वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर क्लास 7. वी विल गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू क्लास 7 मैथ्स इन आवर नेक्स्ट सेशन. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid. Here I am taking care like maths, physics and chemistry for higher classes. Have a great time, maintain notes, practice the sum more than one time. Thank you.